اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے کہ جن اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے پیارے بندوں نے اس میں اللہ ذات کا تصور کر کے اس کا تفکر حاصل کیا، اس کا تصرف حاصل کیا، اس پر عبور حاصل کیا، پھر وہ اللہ کے جو بندے تھے وہ اللہ کے ولی بنے، مقبولان خدا بنے، جس نے جتنا اللہ کو راضی کیا اور اپنا ذکر، اپنا فکر جاری رکھا اور اپنے زبان کو، دل کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھا، نماز، قرآن، حج، کلمہ، زکوٰۃ، اس کی بھی پہرے داری دی اور اپنے مرشد گرامی کو بھی راضی کیا۔ تو ایسے اولیاء اللہ کے جنہوں نے ساری زندگی تصور اس میں اللہ ذات کر کے ولایت حاصل کی ہو، کوئی ولی بنا، کوئی قطب بنا، غوث، ابدال، اغیار، اوتاد، نقبا، نجبا، نقیب الاشراف، سلطان، سلطان الفقراء، قیوم، اور جو بھی مراتب باطن میں ہیں، انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق وہ مقام حاصل کیے، اور وہ مقام حاصل کر کے انہوں نے، ان سے کرامات کا ظہور ہوا، اور پھر ان کرامات کے ذریعے انہوں نے دین اسلام کی ترویج کی، اور جیسے جیسے لوگ اپنے ظرف کے مطابق جو ان سے لینے کے لیے آئے، انہوں نے ان کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی شریعت لینے آیا تو شریعت دی، طریقت لینے آیا تو طریقت دی، حقیقت لینے آیا تو حقیقت دی، معرفت لینے آیا تو معرفت خداوندی عطا کی۔ جیسا کوئی لینے آیا اس کو ویسا ہی منزل، مرتبہ، مقام، ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہے شان اللہ کے ولیوں کی۔ انہوں نے ساری زندگی، اپنی زندگیاں مراقبے میں گزاری، گیان میں گزاری، تصور میں گزاری۔ آپ ہر درویش کی زندگی پڑھ لیں، اس پر حالت استغراق طاری ہوئی، وہ مستغرق کی حالت میں گئے، چاہے وہ بابا فرید ہوں، صابر پیا، کلیئر شریف والے ہوں۔ آئیے آج ہم صابر پیا کی ہی بات کریں گے۔ انہوں نے کیسے بابا فرید سے اس شان کو پایا، مقام کو پایا، اور آج ہندوستان کلیئر شریف میں ان کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ ان کا اصلی نام حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ کسی میرے دوست نے کہا، اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کسی دوست کی خواہش تھی کہ ہمیں انڈیا میں ایک کسی اللہ کے ولی کی بات سنائیں، تو وہ میں آپ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ سنیے، اللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے، اللہ میرے ایمان کو تازہ کرے۔ پھر میں اپنے واپسی اسی موضوع کی طرف آ کر پھر واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، معجزہ اللہ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، کرامت اللہ ولیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ معجزے کے معنی ہے عقل کو عاجز کرنا، کرامت کے معنی ہے بزرگی کو ظاہر کرنا۔ اللہ جب کسی بندے سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، خدا داد طاقتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ بندے کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ اس بندے میں اس کے ظرف کے مطابق سما جاتا ہے، اور اس کے ظرف کے مطابق کرامت کا اللہ ظہور کرتا ہے۔ اور جب اللہ اس سے ظہور کرتا ہے تو پھر اللہ اس ولی کی مشہوری کر دیتا ہے۔ اس ولی اللہ کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے جو فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ دینا جی ولیوں کی کرامتیں غلط ہیں، تو یہ بالکل حدیث کا انکار ہے، بالکل کفر ہے۔ اللہ کے ولی کے معنی ہے دوست۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں ایسی جن لوگوں کی اللہ سے دوستی ہوئی ہی نہیں ہے، آنے کی بھی دوستی نہیں ہے، وہ پیروں فقیروں کے خلاف بولتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ ان کی اپنی نہیں ہوئی اللہ سے دوستی، وہ محض کال کے پابند ہیں، بس کہہ دیا، بولی گئے۔ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے نفسوں پر قابو کا پانا پڑتا ہے، لطائف کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت انسان کا جو اصلی مقام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو زمین پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ اللہ کا جانشین ہو کر بے اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں جو ولیوں کو کہتے ہیں ان کو علم غیب کیسے ہو گیا، جو اللہ کا جانشین بن کر آئے۔
अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ज़बूर में लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़बूर पढ़ी और ज़बूर में ये लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ज़बूर में लिख दिया कि मैं नेक बंदों को ज़मीन का वारिस बनाऊंगा। तो जब अल्लाह इनको ज़मीन पर वारिस बनाता है, अल्लाह अपने बंदों को, नेक सालिहीन बंदों को, हम कैसे उनके इख्तियार के मुनकर हो जाएं? कैसे लोग इख्तियार के मुनकर हो जाते हैं? मैं इससे हैरान हूँ। इख्तियार जो अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता है, अल्लाह अपने नेकों को अता फरमाता है, अल्लाह अपने दोस्तों को अता फरमाता है, अल्लाह अपने सालिहीन को अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दोस्ती करें तो सही, अल्लाह से मोहब्बत करें तो सही, अल्लाह से प्यार करें तो पर करें दिल से। आज हम जो करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, रियाकारी की इबादत है। तकरीरें हैं तो पैसा कमाने के लिए, बयानात हैं तो पैसा कमाने के लिए। आज बंदा पैसे के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते, आप दीन भी नहीं पैसे के बगैर चला सकते। हर जगह तो लालच आ गया। फिर कहते अल्लाह हमसे करामत नहीं जाहिर करता, पीरों की करामतें भी नहीं हो सकती अगर हमारी नहीं हुई तो। अरे उन लोगों ने उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों ने अपने नफ्सों को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया और अपने आप के असली मुकाम को पाया। वकर्रमना लिबनी आदम, हमने आदम की औलाद के गले में इज़्ज़त का हार पहनाया। वो क्या इज़्ज़त? वो ये इज़्ज़त कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं, ये अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के दोस्त, लफ्ज़ दोस्त समझें, अल्लाह के दोस्त। आज दुनियावी बादशाह का, वजीर का या किसी बंदे का कोई दोस्त हो ना, तो वो ही मान नहीं है। तो जो अल्लाह का दोस्त हो तो कह देना जी करामतें कैसी हो गई, ऐसी हो गई, तू अल्लाह का हो, अल्लाह तुझसे करामत का ज़हूर करेगा। अल्लाह फरमाते हैं बंदे एक बार आ मेरी तरफ, मैं 70 बार आऊँगा, मैं 10 कदम उठाऊँगा। एक बार कह या अल्लाह, मैं 70 बार कहूँगा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। हाजिर हूँ का पता क्या मतलब है? तू जो चाहता है मैं दूंगा, तू चाहता है तुझे आलम गैब बना दूँ, तू चाहता है तुझे मुश्किल कुशा बना दूँ, मेरी अता से तू बन सकता है। मैं जिसे चाहता हूँ उससे नबूवत देता हूँ, विलायत देता हूँ, सखावत देता हूँ, मरातब देता हूँ, तो अल्लाह दे सकता है। या तो अल्लाह के फजल से इनकार कर दे कि अल्लाह किसी पर फजल नहीं करता, तो या मान लें जो अल्लाह वाले हैं वो करामात दिखा सकते हैं। आइए जो नहीं मानते अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, उनको अल्लाह हिदायत ही दे तो अच्छा है। ये बात याद रखें क्योंकि ये बिल्कुल गलती पर है। बंदे के मुकाम से ये लोग ना वाकिफ हैं। इंसान अल इंसान सिर्री व अना सिर्रहू, अल्लाह फरमाते इंसान मेरा राज है, मैं इंसान का भेद हूँ, ये मेरा भेद है। अरे तुझे अल्लाह के भेदों का ही नहीं पता, तुझे समझाना अल्लाह ही हिदायत दे। अरे तेरा मुकाम बयान करता हूँ, तू मेहनत कर, तू मुकाम पा सकता है, करामत हो सकती है। चलो अल्लाह इनको हिदायत दे जो औलिया की को नहीं मानते या औलिया की करामत को झूठ समझते हैं। ऐसा हरगज़ नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए, अल्लाह सिर्फ राज़ी नहीं होता, अल्लाह उसे इख्तियार भी अता फरमाता है। तो आइए कलिया शरीफ में एक साबर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं। ये सुबहान अल्लाह क्या बात है। आपने कहते हैं ज़माने में एक आपका मुरीद था, शमसुद्दीन गालिबन उनका नाम था। वो सारी ज़िंदगी पूछता रहा, हज़रत मुझे फ़ना और बका का राज समझाएँ, फ़ना क्या है, बका क्या है। तो हज़रत अली अहमद साबर पिया जो बाबा फरीद के भांजे भी हैं रहमतुल्लाह अलैह के, तो फरमाते हैं यार वक़्त आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। फिर कुछ दिन गुजरे, महीना, 2 महीने, 6 महीने, हज़रत वो मुझे बताइए। फरमाया क्या पूछना चाहते हो? हज़रत मुझे बताइए कि फ़ना और बका में क्या। फरमाया वक़्त आएगा तो बताऊंगा। आखिर हज़रत साबर पिया का आखिरी वक़्त आ गया, पास गया, कहता हज़रत मेरे मुर्शद अब तो बता दें फ़ना और बका किसे कहते हैं। साबर पिया फरमाने लगे अभी वक़्त नहीं आया। अच्छा मेरी नसीहत सुन ले। कहते जी हज़रत। फरमाया मैं अब दुनिया से ज़ारी तौर पर पर्दा करने लगा हूँ, मेरा जनाजा कोई ना पढ़ाए, मेरा जनाजा एक नकाब पोश बंदा आएगा, घोड़े पर सवार होगा, नूरानी चेहरा होगा, वो आकर मेरा जनाजा पढ़ाएगा और कोई मेरा जनाजा ना पढ़ाए। ये बात कहने के बाद कलमा पढ़ा और हज़रत साबर पिया रहमतुल्लाह की रूह अज़जान आफरीन की सुपुर्द हो गई। आप पर्दा फरमा गए, गुस्ल देकर जनाज़गाह में रख दिया गया, कफनाया दफनाया जो भी है रस्मात करके आपको रख दिया गया।
اب ढेरों दुनिया इकट्ठी है, कौन जनाजा पढ़ाएगा, कौन जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। आखिर वली अल्लाह तो देखें, साबर पिया, अल्लाह अकबर, वो जलाली वली अल्लाह के जिन्होंने 12 साल एक ड्यूटी दी लंगर बरताने में बाबा फरीद के मज़ार पर, और खाया नहीं, फिर 12 साल लंगर अंदर रखते रहे तो खाया नहीं। 24 साल का जिन्होंने रोज़ा रखा हो उसको अली अहमद साबर पिया कहते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह का जब वो कहते कौन जनाजा पढ़ाए, आखिर इंतज़ार करते शमसुद्दीन ने बताया कि एक शख्स आ रहा है तो वो जनाजा पढ़ाएगा। उतनी देर में वो एक घोड़ा सवार निकाब पोश शख्सियत आई, आकर उन्होंने हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर पिया का जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद वो जाने लगे तो शमसुद्दीन ने पूछा, यार मैं इससे पूछूं तो कौन है, कितना तो मकबूल खुदा है कि तूने मेरे मुर्शिद का जनाजा पढ़ाया, अपनी ज़ियारत तो करवाता जा। उन्होंने अपने चेहरे से चादर को हटाया, वो चादर लपेटी हुई थी, नकाब को हटाया। जब चादर को निकाब को हटाया तो उसने शमसुद्दीन ने क्या देखा, वो जनाजा पढ़ाने वाले भी साबर पिया थे, वो चारपाई पर भी साबर पिया लेटे थे, मैयत की सूरत में भी साबर पिया थे, खड़े भी साबर पिया थे। वो कहने लगा, दौड़ कर कदमों को चूम लिया, हाथों को चूमा, फरमाया हज़रत ये क्या माजरा है। हज़रत अली अहमद साबर पिया फरमाने लगे, और मेरे बच्चे, मेरे मुरीद, मेरे खलीफे, तो मुझे पूछा करता था ना फना और बका क्या है। फरमाया ये जो चारपाई पर लेटा है ये फना है, और ये तो तेरे सामने है ये बका है। ये खुदा की ज़ात में गुम हो गया, अब ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये जो ये फना है ये बका है, यही वो राज है जो मैंने आज तुझे बता दिया है। सुबहान अल्लाह। कैसे वो जलीलुल कदर अल्लाह के वली थे कि जो जनाजा अपना खुद पढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, आज उनका मज़ार कलियर शरीफ में नूरुल्लाह नूर है। दुनिया फैज़ ले रही है, ढेरों दुनिया फैज़ ले रही है। कहाँ से ले रही है? उस अल्लाह के वली ने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अल्लाह का जो दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसके दर पर अपने बंदों को भेजता है। आओ मेरे वलियों के दर पर, आओ मेरे दोस्तों के दर पर। अरे मेरे दोस्त के दर पर कुत्ता भी आ जाए, मैं उसको भी अपनी जन्नत अता कर देता हूँ। असहाबे काफ की बात कर रहा हूँ और कुत्ता कतमीर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वलियों के मज़ार पर कुत्ता बैठ जाए, वलियों के साथ कुत्ता लग जाए, अल्लाह उसे बहिश्ती कर देता है। मेरे दोस्तों, उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतरीन उम्मत, और इस उम्मत के वली अल्लाह सबसे बेहतरीन वली अल्लाह हैं, और इनके जो मानने वाले हैं वो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फ़कर दी सच्ची शाही हूँ। आप फरमाते हैं ये दुनिया में जो कूड़ मार रहे हैं, झूठ मार रहे हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फ़क्र हमेशा रहेगा। अल फ़क्र फ़खरी वल फ़क्र मिन्नी, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया फ़क्र मेरा फ़ख्र है क्योंकि ये मुझसे है। तो मेरे दोस्तों, तरीक़त को कभी ज़वाल नहीं है, मारिफत को कभी ज़वाल नहीं है, इश्क़ को कभी ज़वाल नहीं है, फ़क्र को कभी ज़वाल नहीं है। और जो फिर अल्लाह वालों के साथ लगकर ये मुकाम तय कर ले, उनको भी फना और ज़वाल नहीं होगा। आइए हम अपनी ज़िंदगियों की रुख बदल दें, काया पलट दें, ये बहसो मुबाहिसे वाली बातें छोड़ दें, काफर कौन मुशरक ये बातें छोड़ दें, अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह वालों के दामन को पकड़ लें। इस साईं महबूब पीर के साथ मिल लीजिए, इनसे मिलें और देखें कैसे अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखना है, कैसे हमने अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। क्योंकि किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ है, जैसे अल्लाह ने हज़रत सुल्तान बाहू को, हज़रत साबर पिया को, बाबा फ़रीद को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, ख्वाजा निज़ामुद्दीन को अल्लाह ने जैसे मर्तबे अता फ़रमाए, उनके मरातब से अल्लाह मुझे और आपको भी मरातब अता फ़रमाए। अल्लाह जो मेरी ज़ेरे निगरानी मश्क़ वजूदिया करते हैं, अल्लाह उनके भी कलूब को ज़िंदा फ़रमाए, और अल्लाह हमारे हल्का इरादत को वसी फ़रमाए, अरीज़ फ़रमाए, और बिला तफ़रका बिला तफ़रीक
अल्लाह ताला हमें सही मानों में औलिया अल्लाह वो रस्सी हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, आपस में फिरकों में ना बटो। वो अल्लाह की रस्सी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूब हैं जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अल्लाह के दोस्त, दोस्त को पता होता है दोस्त कहाँ रहता है, तो वो दोस्त हमें उस दोस्त अल्लाह तक पहुंचाते हैं। आइए सच्चे दरबार पर आ जाएं, खरे दरबार पर आ जाएं, और वो दरबार हज़रत सुल्तान बाहू का है, वो दरबार औलिया अल्लाह का है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुर्दा कुलूब को इसमें अल्लाह ज़ात से ज़िंदा फरमाए, हमारे सीने और पेशानियों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।